Hello everyone. In literary theories, today we'll discuss some basic concepts that will be relevant to a literary theory Marxist. So let's learn today's lecture. Some basic concept. Socio-economic ideologies are a system of thought about how wealth, power and resources should be distributed in society. So, three things are there which are needed to be focused. One is the wealth of society, one is power, and one is resources. How resources, wealth, and power should be distributed in society. So, we have different socio-economic ideologies for them, right? So, these are ideologies. The first one example here we have example of such ideologies. For example, we have capitalism. In Urdu we call it सरमायादाराना निज़ाम, जिसमें दौलत जो है ना वो कुछ elite के हाथों में concentrate होती है, right? So wealth that is accumulated in a few hands, and where the richer or the rich people become richer, while the poor they become poorer. The second socioeconomic system we have that is feudalism, जिसको हम उर्दू में जागीरदाराना निज़ाम भी कहते हैं, where we have some lords and they own those huge acres and huge amount of lands in their hands, and peasants they work in their field, in their lands. लेकिन इन peasants को ज़मींदारों को या काम करने वाले लोगों को बहुत कम जो है ना उजरत या वेजेस मिल जाती है, जिससे वो बमुश्किल दो वक्त की रोटी वो खा जाते हैं. एंड ऑल द वेल्थ okay that is generated through these growing field and lands that go in the hands or in the pocket of the landlords. And the next we have socioeconomic system that is known as social Darwinism. In social Darwinism अगेन यहाँ पर कुछ लोग जो है ना वो ख्याल करते हैं, तसव्वुर करते हैं, ये भी एक आइडियोलॉजी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. जो भी बंदा सुपीरियर है तो वो इन्फीरियर को कंट्रोल करेगा और वो अपने बका के लिए वो कुछ भी कर सकता है. एंड वी हैव द एग्जांपल ऑफ imperialism and colonialism in 20th century, how these powerful nations they control the poorer nation, fine, or which were like less privileged, जो economically कमज़ोर थे. And another socioeconomic system that is called individualisms, and we can see in modern societies वो individual को rights देते हैं, कहते हैं कि आप जाएं और आपके पास capability है, capacity है, so you can generate income, you can earn income, okay, whatever means is there. So we will discuss these socioeconomic ideologies or system in detail one by one. Perhaps not in that much in depth, but we will have some notions regarding to these socioeconomic ideologies or systems. Marxist perspective. Marxism doesn't create these ideologies but criticize them. So मार्क्सिस्ट जो वो भी एक आइडियोलॉजी है, मार्क्सिज्म वो भी एक थ्योरी है. सो मार्क्सिस्ट जो है वो इन आइडियोलॉजीज को क्रिएट नहीं करते, बल्कि इन सारे आइडियोलॉजी के वो अगेंस्ट है. इफ दैट इज कैपिटलिज्म, दैट इज फ्यूडलिज्म, दैट इज मार्क्सिज्म और दैट इज इंडिविजुअलिज्म. सो वो अगेंस्ट है क्लासिज्म के, वो अगेंस्ट है कैपिटलिज्म के, बिकॉज दीज socio-economic ideologies or these socio-economic system create inequalities in societies. So these ideologies create inequality and concentrating wealth and power among a few, leaving many in poverty. So you can use also these ideologies, you can dig out these ideologies in any literary text, right? And you can apply this Marxist theory, fine. So we have been the first one, a socio-economic ideology or system that is called capitalism. Definition: any economic system
where private individual or businesses own property and operate for profit. एक ऐसा निज़ाम कैपिटलिज्म जहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, राइट, स्टेट एजेंसीज नॉट बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस, कारोबार या प्राइवेट जो लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वो उनके पास पैसों से वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उन्हीं प्रॉपर्टी से फिर वो प्रॉफिट कमाते हैं और अपने पास ज़्यादा प्रॉफिट रखते हैं। और जो वर्किंग क्लास होती है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको बहुत कम वेजेस दी जाते हैं, उजरत दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, that a company makes large profit while worker receive low wages. एक कंपनी है जहाँ पर जो कंपनी ऑनर है, राइट, और बिजनेस पर्सन है, so he makes a huge amount of profit while the workers who work in the same factory or company they receive low wages. So इससे क्या होता है कि जो रिच बंदा होता है, so the rich becomes richer while the poor becomes poorer. In which system? Capitalism system. Fine. Now Marxists critique such ideology or such system that create a large wealth gap between business owner and worker. So हमारे पास दो क्लासेस जो है ना वो वजूद में आ जाती हैं। एक हमारे पास होती है अपर क्लास और एक हमारे पास होती है लोअर क्लास, और एक एलीट क्लास और एक लोअर क्लास। सो इससे क्या होता है कि एक क्लास जो होती है वो दिन ब दिन तरक्की कर जाती है, अमीर होती जाती है, और एक क्लास जो है ना वो दिन ब दिन हम कहते हैं कि डाउनफॉल की तरफ आती है, राइट, गुर्बत का शिकार हो जाती है। सो अ लार्ज वेल्थ गैप, देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन अ पुअर and a rich. Fine. So this is okay, like an example of inequality in society. So workers remain dependent on low wages while honor grow richer. क्योंकि वर्कर को भी ज़रूरत होती है कि वो सर्वाइवल के लिए वहाँ पर काम कर जाते हैं और उनकी एक्सप्लॉइटेशन होती है। सो दीज रिच पीपल, ओके, और दीज बिजनेस पर्सन्स, दे exploit these poor people or this working class. Fine. Next we have socioeconomic ideology that is known as feudalism. So a system where land is owned by a small elite lords and worked by peasant who depend on them for survival. So ये इस सिस्टम में क्या होता है कि लैंड जो होती है, ज़मीन जो होती है, वो एलीट के हाथों में होती है, या इसको हम लैंड लॉर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड इनकी ज़मीनों में कौन काम करता है? पेजेंट्स काम करते हैं, राइट, जो काश्तकार लोग होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, उनके ज़मीनों में काम करते हैं। हु डिपेंड ऑन देम फॉर सर्वाइवल, क्योंकि इन गरीबों को, इन पेजेंट्स को भी जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए। So these poor people, these peasants, they work in the lands of the elite class or landlords, and in return they receive hardly 2 times of meal in a day. Fine? And these landlords, they make their profit double and triple, and they increase, you see, their lands day by day. They on more land, and they have like a huge empire of land. For example, we have example here that in medieval Europe, peasants worked on farms owned by lord and had no chance to own land themselves. In medieval period में, जिसको हम मिडल एज भी कहते हैं, जहाँ पर ज़मीन की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, कुछ ज़मीन किंग के पास होती थी, कुछ जो है ना फिर नोबल्स के पास, फिर उसके बाद चर्च के साथ भी कुछ ज़मीन होती थी, और इन सारे ज़मीनों में ये जो लोअर तबका होता था, पेजेंट्स होते थे, ये काम करते थे और इनके पास कोई भी अपनी ज़मीन नहीं होती थी, तो ये इनके लिए ज़मीनों में काम करते थे, राइट, व्हेन इन मिडीवल। एंड इन दिस सिस्टम
or this socioeconomic ideology later on was replaced by capitalism. सो मार्क्सिस्ट क्रिटिक मार्क्सिस्ट इसको भी क्रिटिसाइज करती है. वो कहते कीप द मेजॉरिटी पेजेंट्स इन पॉवर्टी while lands grow richer. So these landlords, they grow richer, right, day by day, while the majority peasants who are in majority, lower class, they become or they remain in poverty, right? They day by day they get poorer, while the rich become richer and richer. So prevent social mobility moving up the social ladder. So there is no chance, opportunity for these peasants, for these lower class, for these poor people, for the peasants who work in the land of the elite, right? इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि ये तरक्की कर सके. इनके पास अपनी ज़मीन हो, इनके पास अपने पैसे हो. यू सी हियर दिस सिस्टम or this socio-economic ideology prevent the peasant class, okay, from what? From social mobility moving up to the social ladder, right? Social ladder mean के ये down पे हैं, ये bottom पे हैं, so ये bottom से top पे नहीं जा सकते. All the time they remain at the bottom. Who? This peasant class. And then we have social Darwinism, where we say the survival for the fittest, right? अपने आप को जो है ना सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं. आप लोगों का गोश्त भी खा सकते हैं. इट मीन्स ओके दैट यू कैन प्रे दिस पोर पीपल. एंड वी सी ओके दैट इन अर्ली 20th century these people from Europe, they came and they occupied land in Indian subcontinent, in Africa, North America, South America, and they made colonies there. So what is this system about, social economic ideology about? The belief that survival of the fittest applies to the human society where stronger individual or group naturally success. के कहते हैं कि सोशल डार्विनिज्म कहते हैं कि जो बंदा स्ट्रांग होगा तो वही सरवाइव करेगा. ये नेचुरल सिस्टम है कि जो बंदा, उसके पास स्ट्रेंथ होती है, उसके पास ताकत होती है, उनके पास पैसे होते हैं, तो वो ही सरवाइव करेगा, वो ही सक्सेसफुल होगा, वो ही आगे जाएगा. और जिसके पास नहीं होगा तो वो मतलब कि ख़त्म हो जाएगा इस माशरे से, हर लिहाज से. सो वो कहते हैं कि एक नेचुरल सिस्टम है. डार्विनिज्म एक थ्योरी थी, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था जो कि साइंस से रिलेटेड है. एग्जाम्पल, wealthy people are seen as superior because they are successful, while poor people are blamed for their poverty. So गरीब लोग जो है उनको ब्लेम किया जाता है उनके गुर्बत के लिए, और जो वेल्थी लोग होते हैं उनको सुपीरियर समझा जाता है because they are successful, right? While poor people are blamed for their poverty. So Marxist इस socio-economic ideology को भी रिजेक्ट करता है, क्रिटिक करता है, तनकीद बनाता है. सो बिकॉज दिस सोशो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी जस्टिफाइज इनइक्वलिटी एज नेचुरल. ये ख्याल करते हैं कि ये जो इनइक्वलिटीज़ है ये नेचुरल है. फितरी तौर पर कुछ लोग जो है ना वो स्ट्रांग होते हैं और कुछ जो है ना वो वीक होते हैं. फितरी तौर पर कुछ लोग वो मतलब कि उनके पास सारे प्रिविलेजेस होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, और नेचुरली कुछ लोग जो है ना वो गरीब होते हैं. सो वो कहते हैं कि इसमें माशरे का कोई किरदार नहीं होता, बल्कि नेचुरली ये लोग गरीब और अमीर होते हैं, और वो गरीबों को ब्लेम करते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर देयर पॉवर्टी. कि आप गरीब हो बिकॉज आप अपनी वजह से गरीब हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते. और असल में यही लोग जो होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं इन्फीरियर को. एक तरफ दे कंट्रोल द इन्फीरियर पीपल, एक तरफ ये उनको ऑक्यूपाई करते हैं. मतलब जिस तरह आप देख सकते हैं कि अर्ली 20th century में जब यूरोपियन पीपल दे आए एंड दे कॉलोनाइज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश. सो ये किस लिए आए थे? ये इसलिए आए थे, उन लोगों को कहते थे कि आप लोग जो है ना, यू आर अनसिविलाइज, यू आर अनएजुकेटेड, राइट? आपके पास मतलब कि यू आर वीक इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली. हम आए हैं कि हम आपको इम्प्रूव कर सकते हैं.
सो वो ब्लेम करते हैं इन लोगों को कि आप जो है ना नेचुरली इस तरह. सो this socioeconomic ideology ignores systematic issues like lack of access to education and healthcare. So मार्क्सिस्ट क्रिटिक करते हैं, वो कहते हैं कि ये सिस्टमैटिकली इग्नोर कर ये सिस्टम जो है ना ये सिस्टमैटिकली इग्नोर करते हैं और किसको, पुअर लोगों को, राइट, जो गरीब लोग होते हैं उनको. सो इग्नोर सिस्टमैटिक इश्यूज. तो ये एक सिस्टमैटिक इशू है, एक सिस्टम के थ्रू, ये डार्विनिज्म जो है ना ये एक सिस्टम के थ्रू गरीबों को कुचल देते हैं. सो लाइक लेक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. सो ये इंटेंशनली एक सिस्टम के थ्रू गरीबों से जो है ना एक्सेस टू एजुकेशन और एक्सेस टू हेल्थ केयर वो छीनते हैं और फिर वो ब्लेम भी करते हैं गरीबों को. सो वो इसलिए मार्क्सिस्ट जो है ना वो रिजेक्ट करते हैं और इसको क्रिटिक बनाते हैं, किस चीज़ को, सोशल डार्विनिज्म को, बिकॉज इट क्रिएट्स इनइक्वलिटी एंड दे से दैट दीज इनइक्वलिटीज आर नेचुरल. हु से? सोशल डार्विनिज्म से. एंड सेकेंड, दैट इग्नोर सिस्टमैटिक इशू. और ये जो डार्विनिज्म है ये एक सिस्टमैटिक इशू को भी इग्नोर करते हैं, जहाँ से एक सिस्टम के थ्रू ये गरीबों को हर्डल्स क्रिएट करते हैं कि उनका एक्सेस जो है ना वो एजुकेशन को या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को वो एक्सेस कर सके. सो इस सोशियो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को भी मार्क्सिस्ट रिजेक्ट करते हैं. And then we have individualism. It is defined as a focus on individual rights, independence and self-reliance. सो ये भी एक सोशियो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जहाँ ये फोकस करती हैं इंडिविजुअल के राइट्स को. और वो कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल वो आज़ाद है, वो इंडिपेंडेंट है और वो खुद अपने आप पर इन्हिसार कर सकते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव कर सके, इकोनॉमिकली वो आगे जा सके. फॉर एग्जाम्पल, इट बिलीव्स that anyone can succeed through hard work regardless of systematic barrier. Forget about systematic barrier. अगर आप जो है ना मतलब कि हार्ड वर्कर है, right, you work hard, so you can achieve the success, right, and you break all the barriers and you go ahead. So ये इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पर इन्हिसार करते हैं. सो मार्क्सिस्ट इस सोशो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को भी रिजेक्ट करती है, कहती है कि और लोग हाउ सोसाइटी स्ट्रक्चर लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द पुअर. सो if you have money, you have power, right, you have resources, so you're going to restrict the poor people to gain success in society. आप गरीबों को restrict करते हैं, उनके लिए hurdles create करते हैं. And blames individual for their struggle instead of addressing systematic issue. So ये एक systematic, because आपने एक ऐसा system बनाया हुआ है जहाँ पर जिनके पास पैसे होते हैं सो वो इंडिविजुअल आगे जा सकते हैं, जिसके पास पैसे नहीं होते वो आगे जा ही नहीं सकते. तो आपने एक सिस्टम जो है ना वो बनाया हुआ है. फाइन. सो व्हाई मार्क्सिज्म अपोजेस दिस आइडियोलॉजी? मेन आर्गुमेंट, बिकॉज फ्यू एट द टॉप विद एनॉर्मस वेल्थ. इसलिए इन तमाम आइडियोलॉजीज को, सोशियो इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज को मार्क्सिस्ट जो है ना वो क्रिटिक करती है और रिजेक्ट करती है, बिकॉज दे से दैट कुछ लोग, फ्यू एट द टॉप, कुछ लोग वो टॉप पे पहुंचते हैं विद एनॉर्मस वेल्थ, और एक बहुत बड़ी गैप जो है ना वो क्रिएट हो जाती है रिच और पुअर के बीच में. सो एक लोग जो है ना वो टॉप पे जाते हैं, कुछ लोग, बहुत कम लोग जो यू कैन से के एक्सेप्शनली हुआ रिच and enormous wealth they have, while other they are at the bottom. So they create and maintain socio-economic hierarchies. For example, many at the bottom trapped in poverty. बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है ना वो एट द बॉटम पे होती है और वो पॉवर्टी का शिकार हो जाती है. And they justify inequalities as natural as fair. Who? ये कैपिटलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, फीडलिज्म, डार्विनिज्म ये समझते हैं कि ये जो इनइक्वलिटीज़ है ये नेचुरल है, ये इंसानों की बनाई हुई नहीं है
और ये ठीक है, ये फेयर है। सो इसलिए इसको भी रिजेक्ट करते हैं कौन? मार्क्सिस्ट। वो कहते हैं कि मिडिल क्लास if present struggle with rising cost and financial instability। वो कहते हैं कि कुछ लोग वो टॉप पे पहुंच जाते हैं, मेनी जो है ना वो बॉटम पर पहुंच जाते हैं, और जो मिडिल क्लास होती है इफ प्रेजेंट अगर वो होती भी है, सो दे स्ट्रगल विद राइजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का शिकार जो हो जाता है तो वो मिडिल क्लास होता है। गरीब के पास तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी गरीब है। वो जिस टाइम में भी होता है, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, वो तो गरीब था। और जो अमीर थे, इलीट क्लास, वो तो थे, पहले भी थे, अब भी है, आने वाले वक्त में भी होंगे। लेकिन जो बंदा ज़्यादा सफ़र करता है तो वो मिडिल क्लास है, क्योंकि मिडिल क्लास स्ट्रगल करता है और वो इन हाई कॉस्ट और प्राइसेस को जो है ना वो फाइनेंशियली फेस नहीं कर सकते, इसलिए वो इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाए। यू कैन सी ओके दैट हेवी टैक्सेस आर इम्पोज ऑन मिडिल क्लास। If they're salaried people, if they have very like small businesses, or if they buy commodities, they go to the store and they use petrol. Wherever they go, they pay taxes in different shapes and different forms. That's why that Marxists critique these all socio-economic ideologies. So thank you so much. In next class, we will discuss in detail classism, and which will be the part and continuation of this lecture. So please provide your valuable comment that we proceed with next part of this lecture. Thank you so much.